Good morning, friends. Welcome to 49th lecture of Business Mathematics. Friends, we are discussing regarding set. We have discussed that set is a collection of well-defined objects. Next, we have discussed different basic operations of set. What are the basic operations of set? We have discussed the different basic operations of set are union of set, intersection of set, complement of set. Then we have discussed product of sets. We have discussed the basic operations of set. Next, we have discussed a concept called Venn diagram. What is Venn diagram? It's the pictorial representation of set within a square. Square means the square is represented as universal set. Within this, the sets are represented as circles. So in square and circles, we represents these sets in rectangles and circles, and that is known as Venn diagram. So Venn diagram gives a logical explanation to this set. Today, by applying the basic operations and the Venn diagram, we will find out a concept called number of elements in a set. It's very important from examination point of view. In examination, you generally get a question of the number of elements on set. So today we will discuss the concept called number of elements in a set. Okay. So let me first share my screen with you. Then we will discuss more on number of elements on set. 1 second, please. Number of elements in a set. Now we will find out how many number of elements are there in a particular set by the help of different operations. Now first point is clear. Number of elements can only be computed in case of finite set. We have discussed set are of two types, finite set and infinite set. In case of finite set, the number of elements are countable, but in case of infinite set, the number of elements are not countable. So first point we will write down point number 1. Number of elements can be computed. Number of elements can be computed only of finite set. Point number 1 clear. नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसका निकल सकता है? सिर्फ फाइनाइट सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल सकता है, इनफाइनाइट सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं निकल सकता है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे. पॉइंट नंबर 2 लिखिए. इफ ए इज ए फाइनाइट सेट, इफ ए इज ए फाइनाइट सेट, ए अगर एक फाइनाइट सेट है, इफ ए इज ए फाइनाइट सेट, इट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, number of elements shall be denoted as Na. अगर A एक फाइनाइट सेट है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाएगा? Na. Na means number of elements of A set. Next point. Na may be found out through actual counting. Number of elements in a set may be found out through actual counting. हम काउंट कर लेंगे उसमें कितने मेंबर्स हैं, जितने मेंबर्स है नंबर ऑफ मेंबर्स उतना हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट लिखेंगे. बट व्हाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन केस ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, but while calculating number of elements in case of union of sets. यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है? अगर दो सेट है, हमको निकालना है n
ए यूनियन बी, या नहीं तो हमको निकालना है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ए स्पेशल प्रोसीजर to be followed for overlapping sets। स्पेशल प्रोसीजर किसके लिए निकालना पड़ेगा? ओवरलैपिंग सेट्स। बेटा ओवरलैपिंग सेट क्या है, मैं समझा रहा हूं ओवरलैपिंग सेट क्या है। सपोज ये एक यू सेट है, उसके अंदर में दो सेट है, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर दो सेट है, सेट ए सेट बी, ये दोनों क्या है? ओवरलैपिंग है। या नहीं तो क्या है, इस तरह का है, ए बी सी तीनों ओवरलैपिंग है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट को भी बोलते हैं नॉट डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट नहीं है, जॉइंट हो गए हैं। जॉइंट है गए मतलब इनमें क्या है? कॉमन एलिमेंट है। अगर कॉमन एलिमेंट कुछ सेट्स का है, इसका यूनियन का नंबर निकालने के लिए ए स्पेशल प्रोसीजर इज फॉलोड। स्पेशल प्रोसीजर इज फॉलो। तो आज हम बात करेंगे ये स्पेशल प्रोसीजर जो फॉलो होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, इन केस ऑफ व्हिच सेट? ओवरलैपिंग सेट, और इन केस ऑफ व्हिच सेट? डिसजॉइंट सेट में कैसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट निकाल सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर जॉइंट डिसजॉइंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में। नॉट डिसजॉइंट सेट मतलब ओवरलैपिंग सेट में कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखेंगे, तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, लिखिए नंबर ऑफ एलिमेंट number of element in case of union of two sets। टू सेट्स मतलब कौन सा सेट? ओवरलैपिंग सेट्स। दो ओवरलैपिंग सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है क्या? तो देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो लिखेंगे ओवरलैपिंग सेट, तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, इन केस ऑफ ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? उन दोनों के बीच में क्या है? कॉमन एलिमेंट है। एन ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ये कुछ अलग चीज है। एन ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ये कौन से केस में नहीं है? ओवरलैपिंग केस में नहीं है। ये कौन से केस में हो सकता है? जहां पर ओवरलैपिंग नहीं है, डिसजॉइंट है, उस केस में हो सकता है। लेकिन इन केस ऑफ ओवरलैपिंग सेट, एन ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, ये नहीं है, याद रखना है। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या है? तो लिखेंगे इन केस ऑफ ओवरलैपिंग सेट, नेक्स्ट लिखो, in case of overlapping set, n a union b is equal to
Na प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। बेटा इसको नहीं करना है, किसको नहीं करना है, ये गलत है, ये सही है, इसको याद रखना है। कौन सा केस में, ओवरलैपिंग केस में। क्यों ये सही है, मैं पहले इसको वेन डायग्राम देकर बिठाता हूं, बनाता हूं, बताता हूं। बेटा ओवरलैपिंग सेट मतलब इस तरह का सेट है, देखिए पहले दिखाता हूं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है, डिसजॉइंट सेट मतलब जहां पर दोनों में कोई जॉइंट नहीं है। तो यहां पर ए अगर 5 है, बी अगर 8 है, तो ए यूनियन बी कितना होगा, 5 प्लस 8 कितना हो गया, 13। इसको कौन सा सेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट में सीधा ऐड कर देना है और हमको मिल जाएगा ए यूनियन बी। लेकिन यहां पर क्या होगा, अगर ओवरलैपिंग सेट है, ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, दो सेट है, समझ में आ रहा है क्या। पहला वाला सेट है ए, दूसरा वाला है बी। ए में कितना है, ए में है 5 और बी में है 8। तो यहां पर हमको देखना पड़ेगा इन दोनों के बीच वाला पोर्शन में कितना है। सपोज बीच वाला पोर्शन में 3 है, इसका मतलब इसके बाहर 2 है। हम अगर ए को लेते हैं उसमें भी 3 चला जाता है, देखिए। अगर हम बी को लेते हैं तो उसमें भी 3 चला जाता है। तो 3 का कैलकुलेशन 2 बार हो रहा है। ए में कैलकुलेट करते हैं तो 3 चला जाता है, बी में कैलकुलेट करते हैं तो 3 चला जाता है। तो ये 3 को एक बार हटा देंगे तो एक्चुअली ए यूनियन बी आ जाएगा। तो इस केस में ए यूनियन बी कितना होगा, पहले 5 प्लस 8, लेकिन एक चीज 2 बार चला गया, कौन सा चीज, ये ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू 3। 5 प्लस 8 13, 13 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 10। बेटा समझ में आ रहा है क्या, ये कौन सा सेट के, ये है ओवरलैपिंग सेट का। तो ओवरलैपिंग सेट में एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज ओवरलैपिंग सेट, जहां पर कॉमन एलिमेंट है। डिसजॉइंट सेट में फर्स्ट केस में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं था तो सीधा ऐड कर दिए। लेकिन यहां पर 2 बार एक चीज जाता है, कॉमन एलिमेंट 2 बार जाता है तो एक बार माइनस कर दिए, तो यही फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ रहा है क्या। तो अभी इसका एक एग्जाम्पल बनाते हैं और क्लियर होगा। तो लिखेंगे एग्जाम्पल, लिखो ए इज ए फाइनाइट सेट, बी इज फाइनाइट सेट, full stop. A and B are overlapping set. Full stop. Number of elements in A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 50, comma the number of elements in B is equal to 30. Full stop. The number of common elements
in both A and B is 10. Find out the n of A union B. क्वेश्चन ये है, तो अभी इसका आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन ही दिया हुआ है, आंसर क्या है? क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, दो सेट्स हैं। कौन कौन सा सेट? एक है दो सेट है, एक है ए सेट और एक है दो बी सेट, और दोनों में क्या है? ओवरलैपिंग है। तो ये ए सेट, फर्स्ट वाला ए सेट, ये बी सेट। ओवरलैपिंग है तो कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स वाला को क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए सेट में क्वेश्चन क्या पूछा रहा है? ए इज ए फाइनाइट सेट, बी इज ए फाइनाइट सेट, दोनों फाइनाइट सेट है। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग हो गए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को बोलते हैं एन ए। कितना है? 50। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी को बोलते हैं एन बी। कितना है? 30। तो ए में है 50, बी में है 30। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी गया, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, ए में 50, बी में 30। नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स मतलब ए में भी है, बी में भी है, इसका मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी। कितना है? 10। तो 10, इसका मतलब 10 ए में भी चला गया, बी में भी चला गया, दो बार चला गया है। तो हमको पूछ रहा है फाइंड आउट एन ए यूनियन बी। तो लिखेंगे A and B, A and B are overlapping set. Hence N A union B is equal to क्या होगा? N A plus N B minus N A intersection B। अभी पढ़े थे। N A कितना है? N A सर है 50 प्लस एन बी कितना है? एन बी सर है 30 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है सर? 10। तो कितना हो गया? 50 प्लस 30, 80 माइनस 10, 70। ये जो ब्रैकेट दिए हैं ये कौन सा सेट? यू सेट। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। तो हमारा आ गया एन ए यूनियन बी 70, दैट इज आंसर। आपका आंसर आ गया 70। ठीक है, तो इसके ऊपर और एक प्रॉब्लम बनाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखे हैं? इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन को लिखिए आप। इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसमें कितने स्टूडेंट्स है? 100 स्टूडेंट्स है। ठीक, इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 45 स्टूडेंट्स रीड फिजिक्स। वो कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं? फिजिक्स लिए हैं, फुल स्टॉप। 52 स्टूडेंट्स रीड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कितने स्टूडेंट्स लिए हैं? 52 स्टूडेंट्स। एंड 15 स्टूडेंट्स रीड बोथ
दी सब्जेक्ट्स। बोथ दी सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बोथ दी सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड आउट, 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who study only physics। जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who study only chemistry। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who study either physics or chemistry। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who study neither physics or chemistry। अच्छा ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है, इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट, एक क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100। इसका मतलब अगर ये हमारा वेन डायग्राम है, इसमें टोटल स्टूडेंट्स 100, टोटल स्टूडेंट्स 100 मतलब आपका यू कितना है, यू इज इक्वल टू 100। अच्छा, इसमें से कुछ स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स, सपोज ये वाला ए वाला स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या, ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, वो कितने हैं, ए सर 45। नेक्स्ट, 52 स्टूडेंट्स रीड केमिस्ट्री, सपोज बी वाला स्टूडेंट्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बी कितना है 52, एंड 15 स्टूडेंट्स रीड बोथ। ए और बी में बोथ कौन सा है, कॉमन कौन सा वाला है, सर कॉमन ये वाला फिगर है। कौन सा वाला, ये वाला है। सो ये जो वाला है बोथ है, तो ये बोथ वाले कितने हैं, बोथ वाले पूछ रहा है कितना है, 15 है। क्वेश्चन अभी पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हैं बेटा, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली फिजिक्स। बेटा फिजिक्स तो 45 पढ़ रहे हैं, उसमें से बोथ वाले चले गए 15, तो बाकी जितना बचते हैं वो ओनली फिजिक्स। सो ओनली फिजिक्स वाला कौन सा होगा, ओनली फिजिक्स वाला ये वाला पोर्शन होगा, ये ओनली फिजिक्स वाला। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली केमिस्ट्री, बेटा केमिस्ट्री तो 52 जन है, ओनली केमिस्ट्री कौन सा होगा, ओनली केमिस्ट्री ये वाला होंगे। ठीक है, then number of students who study either physics or chemistry, either physics और chemistry कौन होंगे, ये जो टोटल फिजिक्स का टोटल, केमिस्ट्री का टोटल, मतलब ये यूनियन बी पूछ रहा है, ये ए यूनियन बी का पूछ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी नाइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री, बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री कौन पढ़ रहे हैं, ये ए का पूरा पोर्शन, बी का पूरा पोर्शन फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कौन फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहा है, कितने लोग हैं, तो इतने लोग हैं। ये जो डॉट दे रहा हूं, ये सब फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, इसका बात निकालना है। क्वेश्चन पहले समझ में आ रहा है क्या,
तो एक एक करके करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे पहले समझा दिया हूं, समझ में आ रहा है क्या? तो फास्ट लिखेंगे, लेट सॉल्यूशन, लिखिए सॉल्यूशन लिखिए लेट ए बी दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए बी डी सेट ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर मत लिखिए, इसको लिखिए सेट ऑफ स्टूडेंट्स। लेट ए बी दी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड, क्या पढ़ रहे हैं? हु रीड फिजिक्स ओनली, physics, who read physics, full stop. Therefore एन ए कितना होगा? एन ए कितना? जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कितना? इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स है, 45 स्टूडेंट्स रीड फिजिक्स, तो 45, आंसर कितना आया? 45। जैसे ए हुआ स्टूडेंट्स हु रीड फिजिक्स, उसी तरह से लिखेंगे बी दी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड केमिस्ट्री, फुल स्टॉप। देयरफॉर एन बी कितना होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी सेट, एन बी, अच्छा 45 स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़े और कितना स्टूडेंट्स केमिस्ट्री पढ़े? 52 स्टूडेंट्स रीड केमिस्ट्री, दैट इज इक्वल टू 52। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। थर्ड दिया हुआ है 15 स्टूडेंट्स बोथ पढ़े, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who read both physics and chemistry is equal to उनका कॉमन वैल्यू एन ए इंटरसेक्शन बी, कितना दिया हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी, क्वेश्चन में पढ़ेंगे कितना स्टूडेंट्स कॉमन पढ़े? 15 स्टूडेंट्स, तो 15 स्टूडेंट्स, तो आ गया 15 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अभी दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए वेन डायग्राम, इसको एक वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे वेन डायग्राम करेंगे तो देखेंगे, बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज स्कूल इज 100, और एक लिख लो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज इक्वल टू 100। मैं बता था टोटल को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, दैट इज इक्वल टू 100। यूनिवर्सल सेट कितना है? 100। टोटल नंबर ऑफ 100 स्टूडेंट्स है। इसमें दो तरह का स्टूडेंट्स रहेंगे, कुछ फिजिक्स पढ़ते हैं और कुछ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। फिजिक्स वाले आगे, फिर आगे केमिस्ट्री वाले, केमिस्ट्री वाले आगे। अच्छा, फिजिक्स वाले को क्या बोलते हैं? ए, दिस इज ए सेट। कितना वैल्यू है? ए का वैल्यू आपका आ गया 45। फिर केमिस्ट्री वाले क्या है? बी, बी सेट है केमिस्ट्री, कितना? बी सेट आ गया कितना? बी सेट आ गया आपका, ये फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का, बी सेट कितना आ गया? 52। फिर क्वेश्चन में कॉमन दिया हुआ है, कॉमन कितना है? कॉमन ये है, ये है कितना?
ए इंटरसेक्शन बी 15। बेटा समझ में आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली फिजिक्स, जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ता है। तो लिखेंगे फर्स्ट आंसर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड ओनली फिजिक्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who read only physics। बेटा फिजिक्स टोटल पढ़ते हैं 45, लेकिन उसमें से कॉमन वाले 15 है। 45 टोटल है, कॉमन वाले 15 है। ओनली फिजिक्स मतलब कौन सा है? ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन कितना होगा? ये वाला पोर्शन सर 45 में से 15 को माइनस कर देंगे। 45 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 30। तो 45 माइनस 15, बेटा 45 को बोलते हैं ए, माइनस 15 को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू 30 स्टूडेंट्स। पहले समझ में आ रहा है क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड ओनली फिजिक्स। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन, हु रीड ओनली केमिस्ट्री। बोलो आंसर क्या होगा? ओनली केमिस्ट्री। ओनली केमिस्ट्री मतलब क्या होगा? केमिस्ट्री तो 52 पढ़ रहे हैं, ओनली केमिस्ट्री कौन पढ़ रहे हैं? ये वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं ओनली केमिस्ट्री। तो ओनली केमिस्ट्री वाला पोर्शन कौन सा है? ये सब ओनली केमिस्ट्री वाले पोर्शन है। बेटा समझ में आ रहा है ओनली केमिस्ट्री वाले कौन है? क्योंकि टोटल पढ़ रहे हैं 52 जन, लेकिन उसमें से कॉमन वाले 15 है। तो ओनली केमिस्ट्री कितना हो जाएगा? 52 माइनस 15। तो ओनली केमिस्ट्री हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 52 माइनस 15। बेटा 52 क्या है? 52 है बी, माइनस 15 कितना क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू 52 माइनस 15 कितना आता है? 37। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी बोलता है क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिक्स भी पढ़ते हैं या नहीं तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं? मतलब फिजिक्स का टोटल जाएगा, केमिस्ट्री का टोटल जाएगा, लेकिन कॉमन जो होगा वो एक बार जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर एन ऑफ ए यूनियन बी। हमको पता है जब कौन सा ओवरलैपिंग सेट है, ओवरलैपिंग सेट में ए यूनियन बी कैसे निकाला जाता है? ओवरलैपिंग सेट में ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए कितना है? एन ऑफ ए सर 45, एन ऑफ बी कितना? 52। अच्छा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना सर? 15। कितना वैल्यू आता है? ये हो गया 30, 82। तो 82 स्टूडेंट्स क्या करते हैं? आइदर फिजिक्स पढ़ते हैं या नहीं तो क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अच्छा कौन सा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं और कोई सब्जेक्ट लिए हैं, आर्ट्स वाला सब्जेक्ट लिए हैं? तो कौन कौन सा हो सकता है? ये मैथ भी ले सकते हैं। ये वाले लोग ऐसे हैं जो क्या है, क्या लिए हैं? फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं, वो कुछ और दुनिया में है। तो वो क्या है? वो टोटल है 100।
100 में से 82 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आइदर फिजिक्स पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो बाकी कितने बचे हुए हैं? बाकी 100 माइनस 82 हो गया सर 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या पढ़ रहे हैं और कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नाइदर फिजिक्स पढ़ रहे हैं नॉर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो लिखेंगे डी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who read neither physics nor chemistry इजिकल टू कितना होगा सर? 100 थे, ये 82 निकले, 100 माइनस 82 आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 82। अच्छा 100 क्या है? 100 सर है 100, 100 देखेंगे क्या है सर? 100 है यू सेट, तो यू माइनस 82 क्या है? 82 तो सर अभी निकालें, 82 एन ए यूनियन बी, समझ में आ रहा है क्या? तो एन ऑफ यू डिवाइड माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, समझ में आ गया? जिसको भी हम बोलते हैं एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, जिसको बोलते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी का डैश, दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 82, दैट इज इक्वल टू 18। तो हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। इस तरह का एक क्वेश्चन आपका आ सकता है किसमें? एग्जाम में। एग्जाम में कैसे आएगा इस तरह का क्वेश्चन? क्या पूछता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली फिजिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली केमिस्ट्री, नेक्स्ट आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री, लास्ट आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी नाइदर फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में जनरली आता है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये कितना